Okay, so let's start. Yeah. So yesterday we were talking about this again HELP, OALP. See, why I'm kind of emphasizing this, because it's so many of these terminologies which is kind of confusing, and you know, the timelines, all these things, you know, you have to kind of get used to that so that you can understand it. तो ये थोड़ा सा जो है ना, दैट इज व्हाई आई एम काइंड ऑफ कमिंग बैक एंड फोर्थ, क्योंकि थोड़ा सा जो है टाइम लाइन तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ इट वाज इम्प्लीमेंटेड. ओके, तो अभी जो है हम लोग जो है HELP की बात कर रहे थे, एंड देन HELP में आ गया फिर OALP में भी फिर देयर वर सम रिफॉर्म्स. ओके, एंड दोज रिफॉर्म्स वर नोटिफाइड, जो कि हम लोगों ने कल बात किया, दैट वर नोटिफाइड ऑन February 28, 2019. ओके, तो उसमें जो है एंड वी सॉ दैट गैजेट, राइट? याद है ना, हम लोग जो है वो गैजेट हम लोग देखे थे कल कि किस तरह से नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. ओके, एंड 2016 में जो हुआ था कैबिनेट का नोट था, दैट वी डिस्कस्ड. ओके, so now look at this. Now changes relating to expression of interest. Yesterday also I told you about this expression of interest. What is this expression of interest? So basically you are going to see the country is already divided on grid system. Okay, so grid system mein jo hai, what you do is you take blocks. Okay, I'll show you some figures on that one too, and those blocks you can express your interest in to the government, right? Okay, that I'm interested in these blocks. Okay, by paying certain fee for that. Okay, and when it is you express your interest, so what happens during the next bidding time? Okay, they will be advertised. Okay, those blocks will be on bid. Okay, so let's say this bidding time at this time it's running here, this one, right? 1st December to 31st March. This is the current bidding one that is running, and here what you have was that those were block that you had expressed during before 30th of November, you had expressed your interest. So those have been included in this in this time frame, and so here now bidding is going on, and you can you participate in that bid, and of course there will be, if you go to their website, there will be timeline when to bid and when it will be announced and things like that. Okay, so we'll look at that too. DGS का website जो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में. So as you can see that it writes, separate expression of interest application are to be submitted for non-contiguous. Okay, अगर एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच में अगर गैप है, तो that is non-contiguous. Okay, areas or for different category basins. एक category basin दूसरे category basin में जो है, then you have different expression of interest. Okay. And then this also we discussed category 1, 2, 3. These three categories. इसके पहले 4 हुआ करता था. Okay. So if you look at some old data from either DGH or from anywhere, ONGC, even many people still do not know कि अब 3 category हो गया. Okay. अभी भी हो सकता है कि ONGC में बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे OIL में जो लोग उनको लगता होगा वो 4 कैटेगरी है, but actually now DGH has 3 category of basins. Okay, and this is what you have. Okay, total कितना हुआ? Total is 7, 5, 12 and there's 26, right? And 14, 26 basins.
फर्स्ट में है 7 बेसिन, सेकंड में 5 एंड थर्ड कैटेगरी में है 14. Now look at this bid evaluation criteria. Though in that particular document, when we were looking at the gadget, कल हम लोग देख रहे थे ना, Gazette of India notification जो था, so kind of those things are there, but here it's more clarity is given here. Bid evaluation criteria BEC for category 1 basin and CBM blocks. Okay, इसके लिए किस तरह का है? So if you have any question on it, you can ask me, okay, anytime. Okay, either raise your hand or send chat message. Okay. So what you see is for basin 1 category, you have more weightage to work program. Okay. तो वर्क प्रोग्राम जो है किस तरह का दोगे, कैसे किस तरह का डेवलप करोगे, क्या करोगे, हाँ? So that is what is more weightage is given 70% against the 30% weightage to only revenue share. Okay, तो ये तुम्हारा जो है इसमें दो चीज हो गया, या तो वर्क प्रोग्राम एंड weightage रेवेन्यू शेयर. ओके, ये दो ही चीजें जिसमें कि वर्क प्रोग्राम जो है कि हाउ मेनी how many line kilometer or 3D square kilometer area that you want to do seismic, or whether you want to do drilling. So drilling के लिए ज़्यादा weightage रहता है in general. So how many wells you are going to drill, how deep you are going to drill. So those things commonly goes into this minimum work program. तो कि तुम क्या commit कर रहे हो, minimum work program. And then of course there is a revenue aspect कि government को कितना दोगे. तो जो है that is also there. Government share of revenue at HRP high revenue point वो था ना, is capped at 50%, जिसमें कि तुम्हारा windfall gain जो है वो ना हो. ठीक है, उसके लिए किया हुआ था, याद है? ये 7 बिलियन वो जो था HRP and MRP. Okay. For 2 and 3 basins, okay, category 2 and 3, इसमें रेवेन्यू शेयर की तो बात ही नहीं होगी. रेवेन्यू तो तब होगा ना when you are going to produce. Okay. कैटेगरी 2 एंड 3 ये तो नॉन प्रोड्यूसिंग है. ये इसमें अगर तुम एक्सप्लोर करोगे तो इसीलिए वर्क प्रोग्राम को जो है वो 100% वेटेज है कि तुम किस तरह का वर्क प्रोग्राम देना चाहते हो for these two basins. Okay, within exploratory work program more weightage to exploratory wells. Okay, तो अगर तुमने दिया है ज्यादा वेल के लिए दिया है तो of course it is going to get more weightage 80% versus 20% only for seismic. देख रहे हो, seismic को कम है क्योंकि एक्सप्लोरेशन में जो है ड्रिल ज्यादा करना है. ड्रिल करोगे, डीप ड्रिल करोगे, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि स्टेटस क्या है. तो जो है दिस इज व्हाट यू हैव. कोर एनालिसिस अगर तुम शेल के लिए कर रहे हो तो शेल के लिए उसका कोर एनालिसिस करोगे. ओके, तो उसका भी वेटेज है. फॉर शेल रिसोर्सेज has been removed. Oh, that has been removed from bid evaluation criteria. That's good. नहीं तो पहले क्या हो रहा था कि कोर एनालिसिस को वेटेज दिया हुआ था. तो अब इसमें है कि नहीं नहीं ड्रिल करोगे तो फिर तो वो तो जब कंपनी के पास जो ड्रिल करेगा वो तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू लुक एट कि भाई कोर कोर किस तरह का है उसका एनालाइज करेगा. सो व्हाट इज दैट बिग डील.
कोर एनालिसिस को हम क्यों अलग से वेटेज दें? ओके, तो दैट हैज बीन रिमूव्ड. सो नाउ वी हैव सिंपली, देखो 80% ड्रिलिंग का और 20% साइस्मिक का. कितना करोगे बता दो, उसी मुताबिक जो तुम्हारा एक्सप्लोरेटरी ये तुम्हारा जो है बीडी वैल्यूएशन होगा. सो दिस इज रियली गुड. और देखो उसके बाद है ओरिजिनेटर इंसेंटिव ऑफ 5 मार्क्स. अब ये क्या है ओरिजिनेटर इंसेंटिव? कौन बताएगा? आमिर बताएगा. आमिर. यस सर. ये व्हाट इज दिस ओरिजिनेटर इंसेंटिव ऑफ 5 मार्क्स? बोलो. आई डोंट नो. अरे गेस तो कर सकते हो. हम्म. हाँ, क्या हो सकता है? इसके पहले मैंने, बोलो. सर जो लाइक जिसने ब्लॉक लिया है, जो ऑपरेटर है. नहीं, जिसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया सबसे पहले. ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारा एरिया है और इसमें जो है बहुत सारे ब्लॉक्स हैं. ठीक है, ओके. और जो है जब मान लो कि हमने कहा कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. ठीक है, हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया. अब ये जो है ऐसा नहीं है कि हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया तो मुझे ये मिल गया. आई हैव ओनली एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट. तो ये सब, ये ब्लॉक जो होगा वो बिड के लिए चला जाएगा. ठीक है, लेकिन हमने इसको ओरिजिनेट किया है, सो आई शुड गेट सम एक्स्ट्रा वैल्यू. यस सर. ठीक है, ओके. सो दैट इज व्हाट. गुड. ओके सर. सो बिड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देखो, इसमें जो है प्रीवियस पॉलिसी वर्सेस रिवाइज्ड पॉलिसी देखो. बेसिन कैटेगरी, ये देखो इसमें जो है प्रीवियस पॉलिसी एंड रिवाइज्ड पॉलिसी. ओके, टॉप में देखो. देन यू हैव वेटेज एंड स्कोरिंग पैटर्न. कैटेगरी ए, कैटेगरी 1 बेसिन्स एंड सीबीएम ब्लॉक. तो देखो कैटेगरी 1 बेसिन, उसके लिए देखो जो प्रीवियस पॉलिसी था उसमें 2D एंड 3D साइस्मिक के लिए ओनली हैड 25 वेटेज पॉइंट, उसको घटाकर 13 कर दिया. एक्सप्लोरेटरी वेल्स के लिए जो है देखो ज्यादा कर दिया, 52. ओरिजिनेटर इंसेंटिव 5 एंड रेवेन्यू शेयर ओनली 30%. पहले रेवेन्यू शेयर था 50%. ठीक है, सो नाउ रेवेन्यू शेयर इज ओनली 30%. CBM block number of core holes 25 पहले था, नाउ 35. फिर उसके बाद टेस्ट वेल्स के लिए 30. ओरिजिनेटर इंसेंटिव 5 है एंड रेवेन्यू शेयर इज नाउ रिड्यूस टू 30. ओके, तो गवर्नमेंट का कहना है कि ठीक है रेवेन्यू शेयर तो जो होगा होगा, लेकिन मेन व्हाट आई वांट इज दिस वर्क प्रोग्राम. अरे भाई, कोर एनालिसिस जिसको करना हो तो करेगा. शेल रिसोर्स अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो कोर एना, अब कहोगे कि हम क्या बोलते हैं कि अगर हम कोल के लिए कर रहे हैं सीबीएम ब्लॉक को और हम कोर ये कोर का डिजॉर्प्शन नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है? करना है. फिर देखो कैटेगरी 2 एंड 3 बेसिन्स में देखो, इसमें देखो ये देखो वेल्स के लिए एक्सप्लोरेटरी वेल 76%. ओके, 76% कर दिया. And 2D 3D seismic only 19%. Okay, so more wells you commit, मिल जाएगा तुमको. और ये जो है कोर एनालिसिस करोगे, क्या करोगे, उसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया, रेवेन्यू शेयर. अब ये पहले आई डोंट नो व्हाई दिस वाज देयर रेवेन्यू शेयर.
अरे भाई पहले प्रोडक्शन तो हो जाए, पहले मिल तो जाए, तब तो रेवेन्यू दोगे गवर्नमेंट को। हाँ, सो दैट इज व्हाट इट वाज। क्योंकि वंस अ बेसिन इज मूव टू लेट्स से कैटेगरी 1, तो फिर तो आ ही जाएगा, फिर तो उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, रेवेन्यू शेयर लग जाएगा। हम्म। तो मेन यही है आइडिया गवर्नमेंट का कि यू एक्सप्लोर मोर, ओके, मोर यू एक्सप्लोर गेट द बेनिफिट। ओके, ज्यादा ब्लॉक्स लो, अगर कैटेगरी 2 एंड 3 में अभी बेसिन जो है उसमें तुम्हें लग रहा है कि अच्छा हो सकता है तो ले लो, ड्रिल मोर वेल्स, कमिट मोर प्रोग्राम। ओके, ठीक है। सो रेवेन्यू शेयर कैप एट एचआरपी, तो हाई रेवेन्यू पॉइंट का देखो कैटेगरी 1 बेसिन के लिए उसमें नो कैप, और इस पर जो रिवाइज पॉलिसी में कैप एट 50% तक कैप कर दिया गया। एंड देन वेटेज देखो 2D एंड 3D सर्विस के लिए, तो पहले बहुत सारे 2D करोगे तो इतना, 3D करोगे इतना, ये सब हटा दिया। नहीं, ये सब एक्चुअली है वही है जो पहले था, 2D करोगे तो इतना परसेंट, 3D करोगे तो इतना परसेंट है, तो ऑफ कोर्स 3D करोगे तो तुम्हारा ज्यादा है ऑनलाइन के लिए। हाँ, so the question is, if in a category 1 basin, after completing 50% of minimum work program, company is sure that they can start production, will they still have to complete minimum work program? देखो, अगर कुछ भी डिविएशन अगर जो तुम देते हो, मान लो कि तुम्हारा जो तुमने कमिट किया था उससे अगर तुम डिविएट करना चाहते हो, तो होता क्या है कि यू हैव टू शो इट टू डीजीएच। तुम्हें सारा डॉक्यूमेंट जो है वहां डीजीएच में देना पड़ेगा, और तब वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, वो डीजीएच जो है वो देखेगा, हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा डिविएशन होगा तो हो सकता है कमिटी बनाएगा एक्सपर्ट का, एक्सपर्ट जो है उसको रिव्यू करेंगे। हाँ, तो ये हो सकता है। ओके, तो मिनिमम वर्क प्रोग्राम से डिविएट अगर करना है तो उस समय जो है यू हैव टू रियली गिव डिटेल्स कि क्या क्यों करना चाह रहे हो। हाँ, एंड गो टू डीजीएच, एंड देन committee will decide. हाँ, and I'm pretty sure कि जो है there's so much of uncertainty in the subsurface that many people will be revisiting their minimum work program, and therefore DGH का इसमें ज्यादा रोल आते रहेगा। ठीक है। टाइम स्प्रेड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क प्रोग्राम नॉट रिक्वायर्ड। देखो पहले नहीं था, लेकिन अब इसमें जो है रिक्वायर्ड हाउएवर नॉट बिडेबल। ओके, ये बिडेबल आइटम नहीं है, लेकिन जो है बताना तो होगा कि हम कब कंप्लीट करना चाहते हैं, so that they will hold you responsible for that one। ओके, ये नहीं कि बोल दिया कि अच्छा 3 साल में करेंगे और कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकर ब्लॉक बैठे हुए हैं। हाँ, यही तो हो रहा था कोल में। कोल में जो है क्या किए थे सब कि गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोड्यूस मोर कोल्स, तो सभी को जो है दिए कि भाई, लेकिन कंट्री में उतना तो था नहीं कि कैसे प्रोड्यूस करेंगे भाई कोल, इतना तो कैपेबिलिटी नहीं था। तो लोगों ने कहा कि मुझे ही ब्लॉक दे दो, मुझे ही ब्लॉक दे दो, और हम जाकर कोल प्रोड्यूस करेंगे, कोल माइनिंग करेंगे। और पता चला कि सब लोग जो है जितने लोग थे कोल के ब्लॉक ले लेकर बैठ गए।
अब उनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है कि करेंगे कैसे, तो वही सब प्रॉब्लम हो गया। तो पीपल से ओह देयर वाज अ कोल स्कैम, अरे ऐसा थोड़ी होता है। प्रॉब्लम यही था कि किसी के पास कैपेबिलिटी तो था नहीं, तो कौन करेगा। अभी कंट्री में तुमको अगर कह दिया जाएगा अच्छा ड्रिल कर दो, यहाँ इतना कैपेबिलिटी है कहाँ, है कि नहीं। तो यू हैव टू सी ऑल दोस एस्पेक्ट्स। तो पहले अभी मैं बताऊंगा नॉमिनेशन बेसिस क्या होता है, वो सारी चीजें अभी धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अरे क्या क्या क्वेश्चन लिख रहा है अभी, क्या है देखें। एक ने लिखा आफ्टर डिस्कवरी एट कैटेगरी 2 and 3 basins, if the category of that basin is changed to category 1 by DGH, there will be problem for company because of different taxes and conditions। क्यों भाई, वो तो जब ब्लॉक लिया था वो तो कैटेगरी 2 और 3 में था, तो कैटेगरी 1 अगर कर दिया तो रेट्रोस्पेक्टिव थोड़े लगाएगा कि अच्छा आप जो है कैटेगरी 1 में अब आप आ गए, तो आपका जो ब्लॉक हमने दिया था अब उसको हमें पैसा दीजिए, ऐसा थोड़े होगा। कैटेगरी 1 में करना कर दो, लेकिन जो उसके बाद जो उसमें करेंगे, ठीक है, उनके लिए होगा ना एप्लीकेबल, है कि नहीं। Here is one thing, shall abandon the license provided for Rajasthan Basin, did it deviate from work program। अभी ये तो बहुत पुराना केस है कि शेल ने जो है लिया था, वो बहुत पहले का केस है। वो उसमें मिनिमम वर्क प्रोग्राम से डिविएट किया था, नहीं किया था, क्या था, आई डू नॉट नो। लेकिन उसने जो है आई थिंक दे हैड ड्रिल्ड सम वेल्स, जिससे कि उसमें कुछ खास उन लोगों को लगा कि जो है प्रॉब्ली विल नॉट फाइंड मोर, तो उन्होंने छोड़ दिया था। हाँ, तो मिनिमम वर्क प्रोग्राम दिया गया था, नहीं दिया क्या था, दैट पार्ट आई डू नॉट नो द डिटेल्स, एंड दैट वाज आल्सो ओल्ड वंस। ओके, वो बहुत 90s का होगा, क्योंकि उस जैसे 2000 के बाद में तो शेल तो आई नहीं है, उसके पहले का है, बहुत पहले का होगा। आई थिंक 80s का है वो शायद शेल का जो वेल किया। ठीक है, दे डिडंट गो अप टू नॉर्थ ऑफ राजस्थान बेसिन, ठीक है, ये उनका प्रॉब्लम था। आई डू नॉट नो कि उस समय उनका स्ट्रेटजी क्या था, ये तो वो जानते हैं कि वो स्ट्रेटजी क्या यूज करना चाहते, तो इधर स्ट्रेटजी कोई डाइवर्स तो नहीं करता है कि हमने क्यों छोड़ दिया, ठीक है। ओके, सो लुक एट दिस चेंज इन फिस्कल रेजिम। क्या क्या चेंज हुआ, रेवेन्यू शेयरिंग विद द गवर्नमेंट। जो पहले होता था वो होता था प्रोडक्शन शेयरिंग, अब जो हो गया वो रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि पहले का जो था ना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, ठीक है। तो बाद में इसको चेंज कर दिया गया रेवेन्यू शेयरिंग। रेवेन्यू शेयर फॉर कैटेगरी 1 बेसिन एंड सीडीएम ब्लॉक्स, देखो पेएबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ एमआरएससी। अब पहले होता था उसको बोलते थे एमपीएससी, मॉडल प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, अब इसको बोलते हैं मॉडल एमआरएससी, मतलब मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, बेस्ड ऑन द रेट्स कोटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर एट द टाइम ऑफ बिडिंग। जब तुमने जो कोट किया था कि हम कितना परसेंटेज देंगे गवर्नमेंट को, उसी मुताबिक जो है ये तुम्हारा वो तुम्हें देना है गवर्नमेंट को, ठीक है। पेएबल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जिस दिन से तुम्हारा प्रोडक्शन चालू हुआ उस दिन से देना शुरू कर दो जितना तुमने कमिट किया है। पहले प्रॉब्लम होता था व्हेन दे हैड ऑल दिस कॉस्ट रिकवरी ऑप्शन, तो उसमें जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कॉस्ट रिकवरी में, कि वो कौन डिसाइड करेगा व्हाट इज द कॉस्ट रिकवरी, हाउ मच यू आर गोइंग टू रिकवर योर कॉस्ट, ठीक है। तो दोज वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। तो अब जो है सिंप्लीफाइड होकर तो ठीक है भाई, जिस दिन से प्रोडक्शन चालू हुआ उस दिन से तुम अपना रेवेन्यू का शेयर जो कोट किया है बिड में वो
शेयर करना शुरू कर दो, सिंपल। रेवेन्यू शेयर फॉर कैटेगरी 2 एंड 3 बेसिस देखो, revenue sharing at predetermined rates if the annual revenue crosses 2.5 billion। अभी जो तुम पूछ रहे थे ना कि कैटेगरी 2-3 में है, उसको कैटेगरी 1 हो गया तो क्या होगा? तो कैटेगरी 1 हो गया तो ये तो कैटेगरी 2 एंड 3 में लिया था उसने। तो जब 2 एंड 3 में लिया था उस टाइम में भी ये पॉलिसी है कि अगर वो जो है अगर उसका प्रोडक्शन अगर मोर देन 2.5 बिलियन का जो है अगर उसका पर ईयर हो रहा है रेवेन्यू, ओके, तो जो है अप टू 2.5 गवर्नमेंट का ओके, नो प्रॉब्लम, गो एंड डू दैट। जितना तुम 2.5 बिलियन लेते रहो पैसा, लेकिन अगर 2.5 से 5 बिलियन तक जा रहे हो तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है 10% दे देना। अगर 5 से 10 गए तो उसका 30% दे देना, और 10 बिलियन से भी अगर ऊपर हो गया तुम्हारा पर ईयर तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है तब 50% दे देना। ओके, सो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयरिंग उसमें लागू होगा। लेकिन अगर 2.5 बिलियन तक रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है भाई, तुमने एफर्ट लगाया टू गेट दैट एक्सप्लोरेशन डन फॉर 2 एंड 3 और तुम्हें मिल गया ऑयल एंड गैस, तो ये तो अच्छी बात है। और गवर्नमेंट को तुमने और भी जो है वो बेसिन ओपन कर दिया फॉर कैटेगरी 1, तो ये है, ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो इसीलिए ये जो है ना अच्छी बात है, एंड सो दैट शुड एनकरेज। लेकिन वही है कि पीपल काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि भाई कौन सा बेसिन प्रोडक्टिव होगा क्या होगा, सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग। ओके, चेंज इन फिस्कल रिजीम देखो क्या क्या वो, कंसेशनल रॉयल्टी रेट्स फॉर अर्ली कमर्शियल प्रोडक्शन। अगर तुम एक्सप्लोरेशन वगैरह करके जल्दी से जो है अगर करके कमर्शियल प्रोडक्शन चालू कर दिए तो ये तो तुम्हारे लिए बेनिफिट की बात है, क्योंकि उसमें जो है कंसेशनल रेट चालू हो जाएगा। तो प्री रिक्विजिट कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस विद इन 4 years फॉर ऑनलैंड एंड शैलो वाटर ब्लॉक। 4 साल से पहले कर दिए कमर्शियल प्रोडक्शन तो तुम्हारा कंसेशनल रॉयल्टी रेट लागू होगा। अगर 5 years डीप वाटर के लिए और अल्ट्रा डीप के लिए, देन अगेन you have this concessional royalty rates. Existing royalty rates क्या था? Existing royalty rates will be reduced by देखो 10% for category 1 basin, 20% जो है for category 2 and 30% for category 3 basins। तो ये देखो royalty and concessional rates, royalty rates इसमें जो है in this table you have, okay? अभी हो सकता है कि डिस्प्ले होने लगा रॉयल्टी एंड कंसेशनल रॉयल्टी रेट्स। इज इट अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन? ओके, सो देखो एग्जिस्टिंग रॉयल्टी रेट्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। तो ये जो है 14 जनवरी का नोटिफिकेशन है 2019। टाइप ऑफ ब्लॉक, ड्यूरेशन, रॉयल्टी रेट्स फॉर ऑयल, रॉयल्टी रेट्स फॉर गैस एंड सीडीएम। तो गैस एंड सीडीएम मतलब कि चाहे वो तुम्हारा कन्वेंशनल गैस है या फिर सीबीएम से गैस है, इट्स ऑल सेम गैस, इट्स गैस। सो गैस के लिए रॉयल्टी रेट अलग हो गया और ऑयल के लिए रॉयल्टी रेट अलग हो गया, ठीक है। अगर शेल गैस हो तो भी वो गैस में काउंट होगा। हाँ, तो गैस चाहे वो सीबीएम से हो, चाहे कन्वेंशनल रिजर्वायर से हो, चाहे टाइट गैस हो, इट्स गैस, देयर इज रॉयल्टी रेट। ऑयल, देयर इज रॉयल्टी रेट। तो देखो ऑन लैंड के लिए 12.5%, ऑयल के लिए
गैस के लिए 10%, शैलो वाटर ऑयल के लिए 7.5%, फॉर बोथ डीप वाटर नो रॉयल्टी। डीप वाटर देखो, अगर फर्स्ट 7 years में कर दिए तो नो रॉयल्टी, आफ्टर 7 years 5%, बहुत ही मिनिमल है। अल्ट्रा डीप वाटर और भी रॉयल्टी रेट घटा दिया, ओनली 2%। कंसेशनल रॉयल्टी रेट्स देखो, डेटेड 11th April 2019, देखो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये देखो। सो कैटेगरी 1 देखो, पहले था 10%, अभी ये सब देखो चेंज हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, ये जो है अब रॉयल्टी रेट, कंसेशनल रॉयल्टी रेट्स जो है लागू हो रहा है। पहले एग्जिस्टिंग रॉयल्टी रेट्स ऊपर था, ठीक है, अब कंसेशनल रॉयल्टी रेट ये है। ओके, अब देखो, देन यू हैव नाउ एक्सप्लोरेशन पीरियड। Exploration period 3 years for online shallow water CDM blocks with the provision of 9 months extension. Okay, exploration के लिए हो तो ठीक है, 3 साल के लिए मिलेगा और 9 months और भी दिए जाएंगे। तो तुम जो वर्क प्रोग्राम दोगे तो दैट मीन्स, इसीलिए तो था ना कि ये जो टाइम का जो था वो हटा दिया गया है कि टाइम है वो नॉन बिडेबल आइटम। एक्सप्लोरेशन पीरियड और नॉन बिडेबल आइटम। 4 years for deep, ultra deep water blocks with provision of 18 months extension. No provision for subsequent exploration phase. Exploration period as per policy reform is as under. ठीक है, अगर एक्सटेंशन लेते हो तो तुम्हें देखो एक्सटेंशन फी देना पड़ेगा। Extension will be automatic. Approval of the government is not required. Okay, इसमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, पैसा दो, that's it. Extension can be sought to complete committed work program only. जो वर्क प्रोग्राम कमिट किए हो उसी को के लिए एक्सटेंशन मांगोगे ना। एडिशनल वर्क प्रोग्राम कैन आल्सो बी परफॉर्म ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड। अगर एडिशनल करना है तो करो। ओके, ये सिंपल लग रहा है सब, है कि नहीं? अगर कोई डिस्प्यूट है तो देखो, alternate dispute resolution mechanism, an alternate simple method for dispute resolution has been introduced. Parties may submit dispute to the committee of expert notified by the government for mediation, conciliation or both before submitting to arbitration. ठीक है, पहले जितना करना है गवर्नमेंट के साथ बात कर लो भाई, मीडिएशन कर लो, कॉन्सिलिएशन कर सकते हो तो कर लो बिफोर यू गो टू द कोर्ट। है तो ये हो सकता है, गवर्नमेंट का एक्सपर्ट कमेटी है उसके साथ बैठकर बात कर लो, रिकॉन्साइल करो। नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कोर्ट जाओ। तो ये देखो, प्रोसीडिंग कैरिड आउट बाय कमिटी शैल बी गवर्न बाय आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो है गवर्नमेंट का एक्ट है। Arbitration proceedings cannot be invoked for dispute settled by the committee. Okay. Settlement agreement shall be final and binding on the parties. अगर settlement का agreement कर लिया तो उसके बाद फिर वो तो binding हो जाएगा ना on both parties. Dispute may be referred to arbitration if it is not resolved by the committee. ठीक है, तो ये तो होता है, इसी तरह से होना भी चाहिए। हाँ, ठीक है। Any questions so far? तो ये एक तरह से तुम लोगों को HLP का आइडिया मिल गया कि क्या है इसमें। Let us look at this salient feature of, I think this one I've already talked about.
this change in discovery, development and production provisions. ये बहुत सारे जो है फीचर्स हैं इन द MRSC. ओके, देयर इज लाइक, ठीक है, आ जाएगा. So the slide that I have is change in discovery, development and production provisions. Article 10 of MRSC, Model Revenue Sharing. That part, see, the question one has asked is it mandatory to provide the data gathered during MWP, that is minimum work program, to the government, or company can hide it? देखो, ऐसा नहीं होता कि कंपनी कैन हाइड इट. बताना तो होगा कि क्या क्या डेटा गैदर कर रहे हो, ये तो डीजीएच को बताओगे, ठीक है. नाउ व्हेन डीजीएच कैन seek the data, ये I am not very sure, ठीक है. ये जो है typically यूएस में क्या होता है कि यूएस में let's say you acquire, let's say you drilled a well and you are, you know, and you have well log, ठीक है. तो well log जिसके पास है, that means you have a lot of information. तो वो जो है, those who have drilled the well, I think they can keep the data secret for 2 years, I believe. Okay? And 2 years तक जो है उसको यूज करें और उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट को दे दें, ठीक है. Similarly, there is also provision for seismic as well. Okay, ये seismic जो है कितने टाइम तक रख सकते हैं, then you give it to the government. Okay, तो ये कुछ provisions हैं. Okay, and DGH में भी तो देना तो पड़ेगा. Okay, ये जो डेटा है ultimately देना तो होगा, but I am not very sure कि कब देना होगा. Okay, I'll find out कि कब देना होगा. Okay, so change in discovery. Okay, so timelines. Okay, I think this is fine. Therefore, इसमें नीचे लिखा obligation to run drill stem test has been removed. तो ये सब जो है पहले हुआ करता था, ये सब हटा दिया गया है. So there are some changes in this one. Okay, and field development plan or FDP approvals and timelines, बहुत सारे parameters जो है previous policy and revised policy में जो है, there have been some changes, as you can see. पहले जैसे कि drill stem test with respect to exploration were compulsorily required, but now it is run test as per GIPIP. Okay, जो तुम्हारा जो है उसके मुताबिक जो है. Field development plan approval and timelines. Then so much of these things are there for all these in model this revenue sharing contract that you sign, things have been changed a bit. तो वही सारे चीजें इसमें दिए हुए हैं. What are the things given? Okay. Other miscellaneous changes, therefore, the definition of effective date has been modified to address the issue of contract area. Okay. Approval of management committee for following. Okay. अब पहले ये सब जो है
it's not required. अब पहले मैनेजमेंट कमेटी जो होती थी उसका अप्रूवल चाहिए होता था डीजीएच के. Notification of discovery not required. Part A of field development plan. ये सब जो है ना बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं. इसमें जो है पहले लोग अप्रूवल ले रहे होते थे. अब things have been changed. Okay. So this is what you have, some salient features. Now, if you want to look at this model revenue sharing contract, okay, so here it is, model revenue sharing contract, okay. MRSC. Do you all see that? अच्छा, तुम लोगों का फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट करना है बीटीपी का, टॉपिक्स वगैरह कुछ मिले हैं? मैंने तो कल 5 टॉपिक्स दे दिए थे. सो टॉक टू डॉक्टर तुषार शर्मा, वो तुम्हारे डीयूजीसी हैं. कल मैंने 5 दे दिए थे जिसमें कि आई थिंक 2 मैंने पेट्रोलियम इसका रखा है, इकोनॉमिक्स का भी रखा है उसमें. तो क्या क्या रखा था मैं देखूं. एक रखा हूँ प्रोबेबिलिस्टिक रिजर्व एस्टिमेट यूजिंग साइस्मिक एंड वेल लॉग. दूसरा है यूनिफाइड प्रोडक्शन डेटा एनालिसिस फॉर फोरकास्टिंग अल्टीमेट रिकवरी. तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ जियो मैकेनिक्स इन ईओआर. Fourth one is future role of LNG in India. Fifth, production sharing contracts of India and neighboring countries. Okay, so ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये नेबरिंग कंट्रीज का भी साथ में एनालाइज करके देखो कि क्या है. तो ये जैसे कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडिया का क्या है, तो दिस इज मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एट दिस टाइम. लेकिन इसके पहले का भी एनईएलपी का देखो कि क्या था. So can you see this now? I'm pretty sure now you can. Okay. So this is model revenue sharing contract. इसमें जो है, this is what you have. Model revenue sharing contract between Government of India and company under HELP with respect to contract area identified as block. Block का नाम दे दो, name जो भी होगा. So this is what your contract is going to look like. अब इसमें देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या क्या तुम्हें बनाने हैं. इसमें डेफिनेशंस हैं. पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट क्या क्या है. पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट ये होता है जैसे कि मान लो कि तुम्हें जो है ज्वाइंट वेंचर करना है. हाँ, तो ज्वाइंट, इसमें थोड़ा सा एनलार्ज करें. now you can see. So participating interest, license and expiration period, relinquishment, work program, management committee, operatorship, joint operating agreement, operating committee, general rights and obligations of the parties, government assistance, discovery, development and production, petroleum exploration license and lease, unit development, measurement of petroleum
protection of the environment, revenue share, tax royalties and rentals, duties, etc., domestic supply, sale, disposal, and export of natural gas, crude, oil, and condensate. Okay. Joint development of common infrastructure, valuation of petroleum, employment and training, local goods and services, insurance and indemnification, records, reports, accounts, and revenue audit, information, data confidentiality, inspection and security. ये अभी देखो, my God, इतने सारे. फिर देखो, title of petroleum data assets, assignment of participating interest guarantees, terms and termination of the contract, force majeure, applicable law and language of the contract, sole export, conciliation and arbitration, change of status of members, entire agreement, amendments, waiver and miscellaneous certificates, notices, survival, severance of invalid provisions. देखो इतने सारे हैं. फिर उसके बाद अपेंडिसेस में बहुत सारे कैसे कैलकुलेट करेंगे रॉयल्टी रेट्स, ये सारी चीज कैसे कैलकुलेशन होगा. तो ये 100 पेज का डॉक्यूमेंट जो है, इट्स अ वेरी गुड वन. ओके, एंड यू शुड डाउनलोड इट एंड यू शुड रीड इट. ओके, इट्स अ वेरी गुड. ओके, ये अगर especially those who are going to work on this BTP for production sharing contracts, they should definitely download and study that one. And others also should have a look at this कि कैसे करते हैं. Okay? तो इसमें जो है बहुत सारे जो लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज ये पूरा लॉयर का लैंग्वेज होता है. ओके, और देखो अभी GIPIP क्या था, गुड इंटरनेशनल पेट्रोलियम इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस. देखो अब ये क्या है, इसके बारे में समझो. अब ये देखो, रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑनलैंड एरियाज. ओके, डेफिनेशंस. सो सारे डेफिनेशंस यहाँ पर देखो एक साथ दिया हुआ है. affiliate, appraisal program, appraisal well, arm's length sales, article, ये सारे definitions जो है यहाँ पर दिया हुआ है. देखो, barrel mills quantity or unit equal to 158.9074 liters, okay, or 42 US gallons. Okay? ये सारी चीज लिखी हुई है. At temperature, देखो temperature भी दिया हुआ है. At temperature and 1 atmospheric pressure. Basement का definition क्या है, bed, so many things. Okay, so you all should look at this one. So I'll just simply scroll through this one and let us see if there are some points where I can explain. देखो अब यहाँ पर जो है क्रूड ऑयल का डेफिनेशन है. क्रूड ऑयल और ऑयल और क्रूड तीनों को एक साथ है, मींस ऑल काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड बिटुमेन. बिटुमेन भी आ गया क्रूड ऑयल में. बोथ इन सॉलिड्स and in liquid form in their natural state or obtained from natural gas by condensation or extraction, including distillate and condensate, when commingled with the heavier hydrocarbons and delivered as a blend at the delivery point, but excluding natural gas. देखो, केवल नेचुरल गैस छोड़ के सब कर दिया. फिर देखो डीप वाटर का डेफिनेशन कल भी हम लोग बोल रहे थे, 400 मीटर टू 1500 मीटर्स. ओके, what is delivery point, what is development area, development phase. देखो environmental damage,
क्या है उसका मतलब? मीन्स सॉइल erosion, removal of vegetation, destruction of wildlife, pollution of groundwater or surface water, land contamination, air pollution, noise pollution, bushfire, अरे बहुत सब कुछ है इसमें. Disruption to water supplies, to natural drainage or natural flow of rivers or streams, damage ecological, paleontological and cultural sites, and shall include any damage or injury to or destruction of. Okay, देख रहे हो? वाव, ये सारी चीज एनवायरमेंटल डैमेज में आ गया. Explosion, operation, so many things. I think everybody should read this. देखो HPHT का डेफिनेशन देखो. HPHT का डेफिनेशन ये सब याद रखने वाला चीज है. हाँ, क्या है? HPHT means a well having an undisturbed bottom hole temperature of greater than 300 degree Fahrenheit. Okay, 300 Fahrenheit से ज्यादा, and pore pressure of at least 0.8 psi per foot. Okay, look at this, 0.8 psi per foot. That is what it's gradient में बोल रहा है. और require a BOP with a rating in excess of 10,000 psi. अगर उससे ज्यादा का रेटिंग का अगर तुम्हें चाहिए तो that means you are going to have this as HPHT well. वो definition जो है तुम्हारा उसके लिए है 0.8 psi per foot. Okay, that's interesting, क्योंकि 0.8 जो होता है काफी है. हाइड्रोस्टैटिक कितना होता है? 0.44, राइट? 0.45. हाँ, ठीक है. एंड लिथोस्टैटिक होता है 1. और ये देखो 0.8 psi per foot. हाँ, देखो HRP, हायर रेवेन्यू पॉइंट, इनिशियल एक्सप्रेशन फेज. तो इसमें जो है जितने भी टर्म्स हैं, देखो ये सब तुम लोगों को तो याद कर लेना चाहिए. ये जो ग्लॉसरी है ना, ये तुम लोग को याद कर लेना चाहिए सारा. देख रहे हो? रिजर्वायर का भी डेफिनेशन है, देखो. मीन्स नेचुरली अकरिंग accumulation of petroleum including a geological unit limited by rock characteristics, by structural or stratigraphic boundaries, or coal or lignite of any rank which contains petroleum, whether in association or independent of water or any other mineral or a combination of these. याद है तुम लोगों को? नहीं. So all these things, देखो, अल्ट्रा डीप वाटर एरिया, अल्ट्रा डीप. हाँ, ओके. तो एक तो ये हुआ, और एक जो है मैं तुम लोगों को दिखा दूं मैप. ये देखो, पहले तो देखो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड तो शायद तुम लोगों को याद होगा इंडिया का. और हेल्प में जो है क्या किए हैं कि यू हैव दिस ब्लॉक्स के बाउंड्री हैं. लेट मी फाइंड आउट वेयर आई हैव इट हियर. सो एनडीआर, नहीं, एनडीआर में आई थिंक है ना. हाँ, नहीं, एनडीआर में तो हाँ, ये देखो. अभी हो सकता है कि थोड़ा लैग होगा, बट यू विल फाइंड दिस थिंग. आगे इंडिया का मैप दिख रहा है आमिर? इंडिया का मैप दिखे तो बोलना. अभी तक विजिबल नहीं है. दिखने लगा? नहीं? हाफ? ओ
हाँ, इंडिया का हाफ ही है, इंडिया का पार्टली ही हमने रखा है, पूरा नहीं रखा है इसका, क्योंकि थोड़ा जूम किया हूँ। सो यू कैन सी दैट देयर आर सम ग्रिड्स, देख रहे हो ऑनलाइन, ये सारे ग्रिड्स बने हुए हैं। हाँ, ये देखो, हाँ ये ग्रिड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो यही जो है, और फिर देखो ऑफशोर में भी ग्रिड्स बने हुए हैं। सो द एंटायर कंट्री को ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, ठीक है, ग्रिड पैटर्न में। और इससे जो है यू कैन टेक विच ब्लॉक यू वांट फॉर योर, देखो 10 मिनट बाय 10 मिनट का ग्रिड है, देख रहे हो यहाँ पर। देखो 10 बाय 10 का ग्रिड है। हाँ, okay, so that is how it's been divided into grids, and you can access data. So chalo ab main I stop here, and then again we'll start from here tomorrow. Okay, chalo, bye.